Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Studies CSIR Net channel and this is my regular class जो कि एवरीडे होती है, आप सभी जानते हैं. सो द रेफरल कोड इज अमित स्टैन, जिसका मैं अभी आपको यूटिलाइजेशन बताऊंगा कि हम क्या यूटिलाइज करते हैं इसको. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मेरी अदर क्लासेस की. अदर क्लास है रेगुलर क्लास जो कि फर्स्ट है, लिखा हुआ है जिसमें अभी अभी हम हैं 7 PM पर एवरीडे होती है. ठीक है, और कहाँ इसका प्लेटफॉर्म है? वाईफाई स्टडी CSIR नेट का प्लेटफॉर्म है. सुपर क्वेश्चन सीरीज मंडे टू फ्राइडे होती है, 12 नून पर होती है. ठीक है ना. सो आप इसको भी इजिली एक्सेस कर सकते हैं. यूट्यूब पे जाइए, वाईफाई स्टडी CSIR नेट लिखिए एंड देन यू कैन एक्सेस दिस क्लास आल्सो. आफ्टर दैट मेरी स्पेशल क्लास है जो कि मैंने यहाँ नहीं दी है, वो कि 9:30 पे होती है एवरीडे. उसमें कोई मंडे फ्राइडे नहीं है. प्लस क्लासेस अन अकेडमी पे चली हुई हैं 22 तारीख से. ठीक है, और ये भी सुबह 11 बजे होती है. सो प्लस क्लासेस के लिए लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा. व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन एंड व्हाट इज द वे? The way is that one, first you have to download the Unacademy Learning app from your mobile Play Store. Whenever you will download the app, then you just install by following the guidelines. After that, you go to the category net examination, click on the button CSIR UGC net. You will get this window and you have to click on the get subscription button. As you will click on the get subscription button, you will get this page in which the month-wise subscription detail is mentioned. First, for the first month, you have to pay 2,100. Okay, for the 3 months, you have to pay 5,250. For the 6 month, you have to pay 9,450, and for the 12 month, you have to pay 11,500. Okay, so I will suggest you all. For that, you have to either you have to take the 24-month subscription if you are the MSc pursuing student. But for the other one, I can say that you can go for the 12-month subscription and 6-month subscription. So the amount, is it possible? Can we reduce the amount more? Yes, the answer is yes. If you will use the code Amit S10, what code? Amit S10, then you can get this benefit. On what type of the benefit? 10% discount on the each subscription. So notice here that the amount 11,500 have become now 10,395. So that's a good thing. So if we will just calculate per day fee, then that is approximately 31 and 32, meanwhile 32. So that is not the big amount for all of you. You can access you can take the subscription of an academy, and a lot of benefits are there. Oh, the first benefit is that you can access to all the educators. There are number of educators. You can get the PDF. You have a number of discussion class and other things also. So that means what you have to do first, you have to take the subscription without any hesitation. So come to the next one. So चलिए आज हम बात करते हैं किस टॉपिक पे हम हैं. देखिए टॉपिक है हमारा आज रूट निकालना, nth रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, दैट मीन्स एनी नंबर ऑफ द फॉर्म z is equal to a plus ib, where both a and b are real number and okay, both are real number. So the any number of this form a plus by b is called the real number. यहाँ से हमने सीख लिया है प्योरली रियल नंबर निकालना, प्योरली इमेजिनरी नंबर भी फाइंड आउट करना. ये सारी डिटेल हम जान चुके हैं. तो आज हम बात कर रहे हैं रूट कैसे निकालेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालेंगे, या अदर जो रूट्स की बात कर रहे हैं हम कैसे उसको निकालते हैं. तो कुछ चीजों की हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पर. वो क्या है? सबसे पहले आप डी मोविस थ्योरम को देखिएगा. डी मोविस थ्योरम हमें क्या कहती है? इसके स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कैसे इंपॉर्टेंट है? इफ एन बी फर्स्ट इंटीजर. क्या कहा है मैंने? यदि एन मेरा एक इंटीजर है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई सा भी हो, नो मैटर, देन cos थीटा प्लस आई sin थीटा की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा. सो इसको हम सिस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. हाउएवर कंफ्यूज मत होइएगा अबाउट दैट. डायरेक्टली जस्ट यू हैव टू नो okay, cos theta plus I sin theta to the power n is equal to cos n theta plus I sin n theta. सभी लोग जानते हैं डी मोविस थ्योरम को, हम 12 से पढ़ते आ रहे हैं इसको. ठीक है, लेकिन अगर ये हमारे पास इंटीजर जो है, ओके, दिस वन यानी कि जो ये पावर है, दिस इज अ फ्रैक्शन एंड पॉजिटिव और नेगेटिव व्हाटएवर. सो दैट मीन्स दो बातें हुई हमारे पास. एक तो है कि हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर हो, दूसरी बात ये हुई कि ये हमारे पास फ्रैक्शन हो. अगर ये फ्रैक्शन है
तो अभी तो हमने कहा कि ये इक्वल है, तब हम कहेंगे देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस वन। ओके, सो तब कोई एक वैल्यू इसके इक्वल होती है। तो चूंकि एक हो जाती है इसलिए हम जनरली इसे यूज करते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, ये इक्वल तो है ही, बट इन जनरली बट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस De Moivre's theorem is this one. Okay ना, सो मैंने आप लोगों को यहाँ करेक्ट किया। सेकेंड थिंग, यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला में क्या कहता है कि भाई e टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ दिस वन इज दिस वन। आप इसका भी यूज करने वाले हो इन चीजों को हेल्प करने के लिए। एक और चीज, हम पोलर फॉर्म में कैसे जानते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है। हमने माना लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे पास क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ आई विल पुट x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, देन व्हाट हैपन, z के अंदर इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए यहाँ और यहाँ पर, इसको और इसको, इसको और इसको। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, दैट विल बिकम, r हमने कॉमन ले लिया, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, सो दैट मीन्स z इज इक्वल टू r, और सिंपली अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ से यूलर फॉर्मूले का यूज करें, सो व्हाट इज दिस वैल्यू, e टू द पावर i थीटा। ओके, सो दिस इज नथिंग, दैट इज r e की पावर i थीटा। So z is equal to r e की power I theta. This is the polar form. Sir, what is the r? The r is nothing. अगर मैंने इन दोनों का स्क्वायर किया, then what happen? This will become r square is r इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, that means this part और this part। अगर मैं स्क्वायर करके इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, so that means what will be the value, r square cos square theta plus sin square theta is equal to x square plus y square. That means this value is 1. So this means r square is equal to x square plus y square. Simply as r is equal to root of x square plus y square. So this is the value of r. So भाई हमें r का भी पता लग गया है, that is nothing, z is equal to r e की पावर i थीटा था, और r की वैल्यू कहाँ है, r is equal to root of x square plus y square. सो इनका क्या एडवांटेज हुआ सर, ये तो आपने पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमारे पास ये नंबर की थी, लेकिन आपने क्या किया, उसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया। सो हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, ये चीजें छोटी सी कॉमन है। हमें डी मोइवरे's थ्योरम का पता होना चाहिए, हमें यूलर्स फॉर्मूले का पता होना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास नंबर है उसे किस तरीके से हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसका हमें मालूम होना चाहिए। सो चलिए nth रूट ऑफ यूनिटी और इन सब चीजों की हम बात करते हैं। सो लिखिएगा आप सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है, सो मैं उनको लिखवाना चाहूंगा। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, कुछ सीरीज के बारे में भी लिख लेते हैं, वो सीरीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, लिखिएगा। फर्स्ट वन, सम इंपॉर्टेंट सीरीज। सम इंपॉर्टेंट सीरीज क्यों मैं बता रहा हूं, आपको अपने आप पता लग जाएगा। साइन ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x to the power 5 by 5 factorial and so on. Okay, now then second one is the cos x. Cos of x is equal to 1 minus x square upon 2 factorial plus x to the power 4 upon 4 factorial minus and so on. Then अब हम इनकी हाइपरबोलिक फॉर्म की भी बात कर लेते हैं, और साथ साथ बात कर लेते हैं कि हाइपरबोलिक फॉर्म से किस तरीके से हम उनको निकाल सकते हैं। सो लिखिएगा, साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, ये जो एक्सप्रेशन आपने यहां लिखा है, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन, दिस वन, दिस एक्सप्रेशन। ओके, व्हाट यू हैव टू डू इन दिस, जस्ट जो आपके पास साइन है ये वाले, इन साइनों में सब में पॉजिटिव आने वाला है, एवरी साइन विल बी द पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस विल बिकम, क्या बन जाएगी, x प्लस एक्स टू पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल
plus x to the power 4, sorry, x to the power 5 by 5 factorial, and next जो term आएगा x to the power 7 by 7 factorial and so on. So that means हाइपरबोलिक फंक्शन का क्या फायदा हुआ, ये सीरीज हमारी हाइपरबोलिक यानी कि सब पॉजिटिव हो गए हैं, ठीक है। नाउ देन cos के साथ क्या होगा, द सेम थिंग, cos हाइपरबोलिक x is equal to, सिंपली इसको ब्रैकेट को भी नहीं लिखा जाता है जनरली, वी नेवर यूज दिस ब्रैकेट्स, बट टू distinguish both the term n and h, that's what I am writing here, no problem, is equal to क्या वैल्यू होगी 1 plus x square upon 2 factorial plus x to the power 4 upon 4 factorial and so on. This is the thing, यानी कि cos हाइपरबोलिक x का भी हमें पता लग गया, sin हाइपरबोलिक x का भी पता लग गया। सो चलिए एक और मैं लिख देता हूं आपको, ग्रॉफरी सीरीज जिसको हम बोलते हैं, tan इनवर्स के भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा। सो tan इनवर्स x की क्या वैल्यू होती है, I will use another pen for the tan inverse. Okay, now then I have to make a skip. Okay, now so tan inverse x, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारे यूज होती रहती हैं। ओके, tan इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस x अपॉन 3, बी केयरफुल, both there is a factorial but it is not here, plus x to the power 5 upon 5 and then minus and so on। तो ऐसे ही हमारे टर्म बढ़ते रहेंगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि tan इनवर्स हाइपरबोलिक x की क्या वैल्यू होगी, tan इनवर्स हाइपरबोलिक x, ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दैट, पूरी सीरीज में आपको सिर्फ पॉजिटिव कर देना है, यानी कि x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 एंड सो ऑन। समटाइम इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ फॉर हुम 1/2 log of 1 plus x upon 1 minus x। ओके, सो ये कुछ सीरीज हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें याद रखनी चाहिए। तो भाई सीरीज की फॉर्म में तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये सीरीज थी, सीरीज हम याद रख सकते हैं। हमें ये भी पता लग गया कि कैसे कोई नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें ये भी मालूम हो गया है कि अगर हमारे पास हमारे पास जो फार्मूलाज हैं, डी मोविस क्या है और हमारे पास यूलर फार्मूला क्या है। तो चलिए अब हम कुछ और देखते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो लेट अस कम टू द पॉइंट, लिखिएगा द nth रूट, लिखिएगा लेट रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट वी हैव राइट रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कैसे हम इस रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट करते हैं, ये सब बताऊंगा। पहले मैं सबसे पहले आपको फॉर्मल डेफिनेशन लिखवा देता हूं इन द प्रॉपर मैनर, सो दैट हम क्वेश्चंस को टैकल कर सकें। हमारा पूरा पर्पस यहाँ क्वेश्चन को टैकल करना है। दो चीजें हैं, अभी रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा हूं, फिर nth रूट ऑफ यूनिटी भी बात करेंगे, ठीक है ना। सो यानी कि 1, जब हमारे पास z इज इक्वल टू 1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही 1 है, उसके लिए भी तो पहले हम जनरल बात करते हैं। लिखिएगा लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो आपके पास क्या होगा, देन आप क्या कह सकते हैं, सिंपली व्हाट इज दिस, देन z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r मैंने बाहर रख लिया, बी द पोलर फॉर्म, बी द पोलर फॉर्म ऑफ z। ये भी हमें मालूम हो गया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। इसके बाद लिखिएगा देन बाय यूजिंग द डी मोविस थ्योरम, by using de Moivre's theorem, the nth root having n distinct value, nth root having n distinct value
of such a complex number are given by such a complex number is given by z to the power 1 by n, z to the power 1 by n। देखो क्या मतलब था, हम इसका nth रूट निकाल रहे हैं। अगर हमें सेकंड रूट निकालना हो तो n की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, थर्ड रूट 3। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द nth रूट। सो अब हमें z की वैल्यू की तरफ अप्रोच करना है। अब आप नोटिस कीजिए z की वैल्यू क्या है हमारे पास, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट ना। सो यू कैन राइट दिस इज नथिंग, अगर मैं z की जगह पुट कर रहा हूं दैट मीन्स r की पावर क्या आ गया, r की पावर आ गया हमारे पास 1 by n। ओके, सो दैट मीन्स cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर 1 by n, ठीक है ना। Simply just I am going to put this value here, this value is from the place, okay now this is the reason। So what happened, I can write the general values of theta। So what is the general value, you can write this is nothing, that is equal to r to the power n cos 2n pi plus theta plus I sin 2n pi plus theta to the power 1 upon n to the power 1 by n, right। So using the De Moivre's theorem आप इस अपर वाले पार्ट को इनसाइड ले जा सकते हो, बिकॉज एटलीस्ट वन वैल्यू इसकी जिसके इक्वल होगी। सो दिस इज नथिंग दैट इज इक्वल टू r to the power 1 by n cos 2n pi plus theta by n। बी केयरफुल, इसको k ले लीजिए सो दैट आपका डिफरेंट रहेगा, या इसको कोई और नंबर मान लीजिए, एन डैश मान के चलिएगा, दिस इज द एन डैश, ओके, सो दैट यू इट विल बी क्लियर टू यू बोथ मे बी द डिफरेंट, ओके, प्लस आई साइन 2n dash pi plus theta upon n due to the De Moivre's theorem। सो आपके पास सिंपली क्या आ गया, आपको क्या क्या आवश्यकता है इसके रूट्स निकालने के लिए, सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट द थीटा एंड फाइंड आउट द r, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द रूट्स। सो दैट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू हेयर, जस्ट हमें ट्राई करना है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की। पोलर फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट किया हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं इजीली। सो जहां पर आप लिख सकते हैं वेयर n डैश इज इक्वल टू, कहां से शुरू हो जाएगा, 0 से जाएगा, 0 1 2 3 और कहां तक जाएगा n माइनस 1 तक। जैसे ही आप n के पास आएंगे वैल्यूज विल बी रिपीटेड, रूट्स रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। सो दैट मीन्स अकॉर्डिंगली हमें करना होगा। तो चलिएगा सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी या कहें हम की पॉइंट्स, जिनका हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट की पॉइंट इज दैट ये जितने भी रूट्स होते हैं ये ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेशन में होता है, ठीक है ना। ऑल द रूट्स ऑफ root of complex number are in GP, ये सब के सब क्या है, ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल एक रूट अल्फा है, दूसरा अल्फा स्क्वायर होगा, तीसरा अल्फा क्यूब होगा, इस तरीके से ये जीपी में आ जाते हैं विद द कॉमन रेशियो जो भी हमारे पास अल्फा होगा। सो आप चाहें तो कॉमन रेशियो भी लिख सकते हैं, विद द कॉमन रेशियो रूट्स की हम चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं कि z to the power 1 by n with common ratio e to the power 2 pi I by n, ये इनका कॉमन रेशियो होता है,
पहला पॉइंट। ठीक है, आप जब इसको यूलर फॉर्मूले से cos 2 पाई आई थीटा cos 2 पाई आई बाई एन थीटा प्लस आई साइन 2 पाई आई बाई एन थीटा लिखेंगे एंड की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप सब कुछ निकाल सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से पता लग जाएगा एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। नंबर 2, अगर मैं सारे रूट्स का सम कर दूं तो 0 आता है, तो ये लिख लीजिएगा सम ऑफ ऑल द रूट्स is always equal to 0. Sum of root of complex number, कैसा, यानी कि ये ऐसी बात कर रहे हैं, हम ऐसी बात कर रहे हैं भाई, इज 0। देखा है ना आपने, अगर थर्ड रूट ऑफ यूनिटी की बात करें हम, सो दैट मीन्स दिस। ओके, सो इसके क्या आते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। प्रूफ की जैसे हमेशा करते हैं ना, इसी तरीके से जो भी रूट आए हैं आप नोटिस कर सकते हैं, ये क्या है आपके विद कॉमन रेशियो ओमेगा। क्या है यहाँ पर कॉमन रेशियो ओमेगा, सो दैट मीन्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से आपके पास आ जाते हैं। सो थर्ड वे व्हाट यू हैव टू डू, थर्ड प्रॉपर्टी भी लिख लीजिएगा, प्रोडक्ट। अब हमें सम का तो पता लग गया 0 आ गया, व्हाई नॉट वी हैव टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, लिख लीजिए प्रोडक्ट भी। प्रोडक्ट ऑफ all the roots is what, that is equal to -1 की पावर n -1 into z, जो भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और अगर मैंने nth रूट ऑफ यूनिटी की बात की है, सो दिस मींस ये फ्री हो जाएगा, ये z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, जब हम nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द nth रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। ओके, सो इसका आर्ग्यूमेंट भी लिख लीजिए, फोर्थ पॉइंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ all the roots of z to the power 1 by n are in earth AP with common ratio, क्या रेशो आएगा 2 पाई बाई n। सो समझिए बात को, यहाँ पर क्या है, मैं छोटी छोटी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखवा दी आपको। ठीक है, सो व्हाट हैपन विद दिस वन, अगर आपको कहा गया है कि भाई इस कोई पर्टिकुलर नंबर दे दिया क्या आपको कि भाई ठीक है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इसका रूट निकालिए आप। ठीक है, इसका 1/4 रूट निकालिए, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी निकालिए, थर्ड रूट निकालिए, सेवेंथ रूट निकालिए। सो दैट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू यूज द प्रीवियस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, यू हैव टू यूज दिस वन एंड यू विल गेट द यूज। तो कहां तक लेके जाना पड़ेगा आपको एन डैश की वैल्यू को, एन डैश की वैल्यू को 0 1 2 3 4 5 6 तक लेके जाना पड़ेगा, अगर हम सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं। सो दिस इज अ पॉइंट। सेकेंडली, हमें कभी भी स्टेटमेंट में दे सकता है कि भाई ये रूट है इसके, बताइए इनका सम क्या होगा, तो हमें मालूम होना चाहिए जो भी आपके पास nth रूट ऑफ यूनिटी निकालें आप या nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालें, उनका सब का सम 0 होता है। और प्रोडक्ट की बात करें, अगर हम यूनिटी की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स ये टर्म हमारा फ्री हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, रेस्ट ये रहता ही रहता है, यानी कि -1 की पावर n -1 इंटू जेड रहता है, वट एवर इज अवर जेड। ए की पावर आई थीटा यदि पोलर फॉर्म में लिखा मिल जाएगा या फिर x प्लस आई वाई के फॉर्म में मिल जाएगा। सो उसके लिए हमें कभी सोचना और घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्या है, आर्गुमेंट ऑफ ऑल द रूट ऑफ जेड बाय आर इन एपी विद कॉमन रेशियो दिस वन। यानी कि अगर हमें आर्गुमेंट की बात करेगा तो आंसर्स को हमें जरूर देखना चाहिए, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, दैट इज एन एपी बट दैट इज इन द जीपी। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं और किसकी नहीं है, ये कंफ्यूजन आ जाता है। दिस इज द जीपी एंड दिस इज द एपी, दैट इज एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ये तो बात रही इसकी। अब हमसे कोई पूछ ले कि सर ये तो ठीक है, एक इक्वेशन और लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, फिफ्थ पॉइंट भी। ठीक है, अगर हम आप nth क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लिख लीजिएगा थोड़े से पॉइंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। सो भाई इसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। सो
अगर मैं सिंपली कहूँ आपके पास मुझे सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का, व्हाट इज द इक्वेशन, ओके मुझे लग रहा है लाइट पेन ले लिया मैंने, यस मुझे निकालना है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जेड क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दिस गिव्स अस जेड की इज इक्वल टू वन की पावर वन बाई थ्री, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है वन की पावर वन बाई थ्री, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। सो अगर मैं इसकी जगह n लगा दूंगा तो इसमें बोलूंगा n रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि नंबर क्या है मेरे पास वन, दैट्स अ मैटर, ओके। सो यूनिटी उस एस्पेक्ट में आ गया। अगर मुझसे पूछ ले भाई इसका आप जो है सॉल्यूशन निकालिए इस इक्वेशन का, तो आप कैसे निकालेंगे, सेम वे है, वन को देखना है और हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। आप नोटिस कीजिए जेड को मैंने अभी क्या रखा था, जेड इज इक्वल टू था मेरे पास आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। सो व्हाट आई हैव डन, जेड की जगह वन रख दीजिएगा, ये वैल्यू मैंने वन रख दिया, वन इज इक्वल टू, आप नोटिस कीजिए व्हाट हैपन, अगर मेरे पास r इज इक्वल टू वन, सॉरी z इज इक्वल टू वन है तो थीटा की और r की वैल्यूज क्या होती हैं, r की वैल्यू क्या होती है, r इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ओके। और थीटा थीटा मेरे पास क्या होता है, थीटा सिंपली आप या तो यहाँ से निकालिए या फिर थीटा आप वाई बाई एक्स से टेन इनवर्स वाई बाई एक्स से निकालिए, देयर आर ओनली टू वेज, आइदर तो थीटा हम टेन इनवर्स वाई बाई एक्स से निकालें और या फिर हम डायरेक्टली यहाँ अपनी आई क्यू का यूज करते हुए निकालें। अब देखिए ये वन कब आ जाएगा, अगर मैं सोचने लगूँ मुझे आई से तो फ्री करना पड़ेगा ना, यानी थीटा की इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो डेफिनेटली ये वैल्यू मुझे वन मिल जाएगी, दैट मीन्स आर मिल जाएगी और आर भी मेरा अगर वन हो तो ही, ठीक है। तो आर में यहीं से निकाल जाएंगे, कैसे हम निकालेंगे नोटिस कीजिए, व्हाट इज दिस नंबर, दैट इज अ जीरो प्लस सॉरी वन प्लस जीरो इंटू आई, ठीक है। आर की बात करेंगे तो व्हाट हैपन, दिस इज अ वन प्लस जीरो स्क्वायर वन स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन, तो सिंपली व्हाट हैपन वन cos 0 plus I sin 0, that means e to the power क्या आ गया आपके पास i थीटा था ना, I into 0, this is the 0, okay, I into 0। बट अगर हम जनरल वैल्यू की बात करें, इसकी जनरल वैल्यू की बात करें तो क्या आ जाएगी e to the power, या सिंपली कहे जाए तो cos 2n pi plus 0 plus I sin 2n पाई प्लस जीरो, तो ऐसी वैल्यू की हम बात करेंगे, ठीक है ना। सो दैट मीन्स ये तो हमारी किसकी है, सारी की सारी वैल्यू वन की हम बात कर रहे हैं, ये द जनरल वैल्यू आ गई हमारे पास, लेकिन हमें तो इसका चाहिए ना वन बाई थ्री, सो दिस इज व्हाट, इसकी पावर वन बाई थ्री, दैट मीन्स दिस वन, दैट इज व्हाट, दैट हैज बिकम, सिंपली मैंने डिमोवेज एक साथ लगा दिया, टू एन पाई बाई थ्री प्लस आई sin 2n pi by 3, so this is the formula for that one, यानी कि 1 की पावर में cos 2n pi by 3 प्लस आ गया प्लस i sin 2n pi by 3 आ गया, मेरे पास दोनों चीजें आ गई है ना। सो दिस इज ए थिंग, तो भाई हम दोनों चीजों को तो ले आए अपने आप, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। सो हम यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हैं, किस किस की वैल्यू पर रखना होगा हमें, n इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू टू, n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें रूट्स मिल जाएंगे और हम उन्हें बोल देंगे। तो जनरली वो क्या आते हैं रूट, देखो अगर मैं थ्री पुट किया तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, जैसे जीरो पे आया था वही हमारे पास सेम मिलेगा। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, रूट्स विल बी, मैं कहूँ आपके पास तो द रूट्स विल बी, द रूट्स आर, क्या क्या आ जाएंगे रूट्स आप लिख सकते हैं, फर्स्ट रूट आएगा वन, जब मैंने n इज इक्वल टू जीरो रखा तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी, दिस वैल्यू बिकम द जीरो, सॉरी दिस विल वैल्यू बिकम द वन एंड दिस वैल्यू बिकम द जीरो, सो दिस इज अ वन। द सेकंड रूट विल बी, अगर मैंने जब इसको वन रखा दैट मीन्स cos पाई बाई थ्री प्लस आई साइन टू पाई बाई थ्री। थर्ड रूट क्या आएगा मेरे पास, cos 4 pi by 3 plus iota sin 4 pi by 3, so that means तीनों के तीनों मेरे पास रूट आ गए। सो ये तो था प्रोसेस कि भाई इसको हम निकालिए, लेकिन क्या सर हमें एग्जाम में ऐसे करना होगा, सम टाइम भी रिक्वायर्ड और सम टाइम नहीं जरूरत पड़ती। देखो थीटा के लिए हमारे पास दोनों ऑप्शन थे, tan इनवर्स y by x, tan इनवर्स y by x,
और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, so that means what will be that this will be tan inverse 0, that means theta is equal to 0. सो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते थे, कोई इश्यू नहीं होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं पिछली वीडियो में अपने ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ इन डिटेल, तो चाहे तो आप आर्ग्यूमेंट को वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो भाई क्यूब रूट की कुछ प्रॉपर्टी या की पॉइंट्स होते हैं, तो वो लिख लीजिए आप सबसे पहले। की पॉइंट्स, सम आपको मालूम होना चाहिए जीरो है भाई, कोई भी रूट ऑफ यूनिटी हो आपका सबका सम जीरो आने वाला है, पहली बात। अगर हम बात करेंगे प्रोडक्ट की तो -1 की पावर n -1 आने वाला है। हम बात करेंगे कि ये जो रूट्स निकले हैं ये कैसे हैं, दे आर इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके, दैट इज अ थिंग। नाउ देन बट इंपॉर्टेंट क्या होता है ये लिखिएगा। दिस इज द फॉर्मूला, हमें मान के चलना है लेट 1 omega and omega square be cube root of unity, cube root of unity, then क्या क्या बता दिया मैंने, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तीनों का सम 0 होगा, ओके। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देयर प्रोडक्ट विल बी -1 की पावर n -1, n कितना है हमारे पास 3, सो दिस इज व्हाट -1 की पावर 3 -1 इज इक्वल टू 1, ओके। सो दैट मीन्स देयर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 1, ये भी पता लग गया हमें। अब हमें देखना है अगर इक्वेशन ऐसे ना होकर के ऐसे, एक बार एग्जाम में पूछ लिया था भाई ये सिचुएशन दी हुई है 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू पावर 2n, दैट इज इक्वल टू, कैसे, अगर हमें सिचुएशन है ऐसे तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0 होगा और 3 होगा। कब 0 होगा लिखिएगा, इफ n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, इफ n इज not multiple of 3, और दूसरे में लिख सकते हैं if n is multiple of 3, n is multiple of 3, आपको क्लियरली मालूम हो जाएगा जैसे ही ओमेगा क्यूब होता है, ओमेगा क्यूब इज नथिंग दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन हियर, सो इसने क्या कहा 1 ओमेगा ओमेगा की पावर 2 है, सो जैसे ही n आपका 2 का मल्टीपल होगा दैट मीन्स दिस विल बिकम 1 ओमेगा की क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6, सो दिस इज नथिंग। इस केस में क्या आएगा, अगर मैं यहाँ से नोटिस करूँ, इस केस को अप्रोच करते हुए यहाँ दिखाऊँ आपको, सो 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा की पावर 6, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, दिस इज इक्वल टू 1, सो दैट मीन्स 1 प्लस 1, और सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 3 की पावर 2, दिस इसका मतलब क्या हो गया 1, दैट इज इक्वल टू 3, बट इन द अदर केस द सम इज ऑलवेज इक्वल टू 0, सो इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर लेते हैं, है बहुत ही सिंपल, बट हमें ध्यान रहेगा फॉर्मूला तो हमें दिक्कत नहीं आती है। तो ये तो रही हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, क्या कुछ और भी होता है सर इसके अंदर, सो ऐसे ही मैं फोर्थ ऑफ यूनिटी के बारे में भी डिस्कस कर सकता हूँ और बहुत सारी चीजें, बट मेनली थिंग ये है कि हमें क्वेश्चन करना है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम अप्रोच करते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। ओके नाउ देन लिखिएगा, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, मच बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। I will clear all the slide this one, okay। कैसे क्वेश्चन को टेकल करेंगे, आपके पास एक क्वेश्चन छोटा सा दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या है मैं यहाँ से देख लेता हूँ, ठीक है। इफ क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन 1, इफ 1 ओमेगा and omega square are the cube root of unity, are the cube root of unity, ठीक है, then what you have to do, then x minus y into x minus omega y and x minus omega square y is equal to किसके इक्वल होंगे ये,
आपको ऑप्शन दिया होगा, फर्स्ट ए ऑप्शन इज दैट विल बी इक्वल टू x माइनस वाई, बी एक्स स्क्वायर माइनस y square, C x cube minus y cube, and D 1. So that means what we have to do in this case, हमें सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, जब भी कभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी दे, देखो उसमें बिल्कुल सोचना नहीं है। y का फर्स्ट मल्टीपल क्या है 1, ओके, इधर क्या है ओमेगा और इधर क्या है ओमेगा स्क्वायर, यानी कि जो हमने डिफरेंस किया है उसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की क्यूब है। सो इसका जो सम आने वाला है, जब भी हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है x x और x, this x is on the three places. I will just change the ink. एक, दो एंड तीन, तीन प्लेसेस पे है, यानी कि एक्स क्यूब जरूर मिलेगा अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। द अनदर थिंग इज दैट आपके पास y भी 1 2 एंड 3 प्लेसेस पे है, सो दिस मीन्स y भी आपको क्यूब में मिलेगा, पक्का एक पॉसिबिलिटी है x माइनस वाई क्यूब आंसर होगा इसका, ठीक है। बट व्हाट इज द प्रोसेस सर, हाउ टू टेकल, चलिए मैं प्रोसेस बता देता हूं आपको, बिकॉज ऊपर आपके क्यूब रूट थे इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर दे दिया, क्यों पक्का इनको फैक्टर को दे देगा। देखिए रूल क्या कहता है, द रूल सेज दैट आपको दिया हुआ है x माइनस वाई, x माइनस ओमेगा वाई एंड x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, आपको इनका सबका मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, सो व्हाट विल बिकम x स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स वाई, नाउ देन माइनस एक्स वाई प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले से, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई, व्हाट विल बी द वैल्यू, यू जस्ट नोटिस दैट हैज बिकम एक्स क्यूब माइनस, ओके, w square x square y minus then a w x square y then plus omega cube xy square, okay, now then x square y, and now then plus omega square xy square प्लस कितना आ गया ओमेगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब एंड वाई क्यूब, राइट। दिस इज द वैल्यू आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन। सो अगर हम जनरल रूल से जाते हैं तो देखो भाई, पहली बात तो यही है कि ये हमारा टाइम कंज्यूम करेगा मल्टीप्लीकेशन, और प्लस माइनस की कहीं गलती हो गई तो और बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो इसलिए हमें वो ध्यान रखना है। अब नोटिस कीजिएगा, सबसे पहले जो ओमेगा ओमेगा वाले टर्म्स हैं, आपको x और y पावर से मतलब है, क्योंकि आपको इन दो रिलेशंस का ध्यान रखना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। इन दो रिलेशन से आप, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी की बात की है ना, सो दिस इज द रूट, तो दैट मीन्स इन चीजों का हमें यहाँ यूटिलाइज करना है। एक्स क्यूब रखा मैंने, सो व्हाट आई एम डूइंग, आप यहाँ से क्या लीजिए, देखो इसको हमने ले लिया एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ से हमने ले लिया एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ से हमने ये ले लिया एक्स स्क्वायर वाई, देखना है भाई एक्स स्क्वायर वाई। इन टर्म्स को सबसे पहले उठाइए, तीनों नेगेटिव्स हैं, सो माइनस मैंने लिया, सो और बाहर ले लिया एक्स स्क्वायर वाई, क्या बचा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ओके। सो तीन टर्म्स तो फ्री हो गए। अब नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, नेक्स्ट टर्म के लिए ओके व्हाट आई हैव टू डू, बचे कौन से मेरे पास, ये वाला टर्म, एक टर्म ये बचा जिसमें से एक्स वाई स्क्वायर है, दूसरा टर्म ये बचा इसमें एक्स वाई स्क्वायर है, और तीसरा टर्म ये बचा। इस बार प्लस के थे तो मैंने क्या किया, प्लस रखा एंड देन एक्स वाई स्क्वायर बाहर ले लिया, ओमेगा की क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ गया ओमेगा आ गया, ओके ओमेगा, ओके। नाउ देन नेक्स्ट बचा क्या आपके पास, सिंपली ओमेगा की क्यूब और y क्यूब, देन व्हाट हैपन, नोटिस कीजिए दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 बाय दिस वे, हम जानते हैं। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, दिस इज अ नाउ x क्यूब माइनस 0 प्लस 0 और माइनस क्या था ओमेगा की क्यूब y क्यूब, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, दिस इंप्लाइज x क्यूब माइनस y क्यूब।
सो इतना लंबा प्रोसेस कभी भी मत कीजिए एग्जामिनेशन में। यू हैव टू जस्ट टेकल कि हमें किस तरीके का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ऐसा एग्जाम में वो पूछता रहता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या दे सकता है आपको एग्जाम में। जनरली ये फर्स्ट पेपर के लिए यूजफुल रहता है, सो ओके वहां आपको मिल जाएगा, तो फास्टली हमें इसे लगाना होगा। एक और क्वेश्चन दे दे आपको, द कॉमन रूट्स ऑफ किसके, ऑफ इक्वेशंस, कौन कौन सी इक्वेशन दी हुई है, दिस इज द क्वेश्चन। हमें दी हुई है z³ प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है हमें z टू द पावर 1985 प्लस z टू द पावर 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दी हुई हैं और उनके कॉमन रूट्स के बारे में पूछा है। ए आंसर, फर्स्ट आंसर क्या होता है भाई, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो। बी आंसर 1 और ओमेगा हो। सी आंसर 1 एंड ओमेगा स्क्वायर हो। एंड डी आंसर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो। ठीक है ना। सो दैट मीन्स अब इन तीनों का हम कैसे आंसर करें, ये हमें अप्रोच करनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप सिर्फ IQ लगाइए, एकदम से आपका आंसर मिल जाएगा। नोटिस कीजिए, अगर मैंने इस इक्वेशन के अंदर, जो कि मुझे गिवन इक्वेशन है, व्हाट इज दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर अगर मैंने z इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो ये कभी इसका रूट नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। अब ये रूट नहीं होगा, will not be root। अगर ये रूट नहीं है, इसका मतलब जिसमें ये आया है वो तो खत्म हो गया ऑप्शन, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। ओके, इसका मतलब ऑप्शन तो पहला ही सही है, ऑड मैन आउट भी था। लेकिन चलिए चेक कर लेते हैं हम इसको। अगर आप चेक करने की तरफ चलेंगे, सो जस्ट पुट ओमेगा इनसाइड दिस, व्हाट हैपन, ओमेगा की क्यूब प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अगर ओमेगा के क्यूब आप देखें तो क्या होता है, ओमेगा के क्यूब सिंपली 1 होता है, ठीक है ना। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि ठीक है भैया इसमें से ओमेगा आप कॉमन ले लीजिए, व्हाट हैपन, यू कैन राइट ओमेगा, आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, दैट मीन्स व्हाट दिस इज अ व्हाट, नहीं ऐसा नहीं करते हम, ऐसा करते हैं ओमेगा की क्यूब, एक ओमेगा स्क्वायर यहाँ से ले लिया और एक हमने यहाँ से ओमेगा ले लिया, बचे हमारे पास कौन कौन, एक और ओमेगा बच गया और यहाँ स्क्वायर बच गया, यहाँ से ओमेगा बच गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस इज 3, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, इसकी क्या वैल्यू होगी 0 विच इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ओमेगा इज अ रूट। ओके, आप यहाँ रखेंगे, दैट मीन्स आपको 3 से डिवाइड करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा, तब भी आप इसका रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। So that means such type of the questions have been appear in examination of the first paper, so आप वहाँ के लिए इससे हेल्प ले सकते हैं। सो बहुत ही रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें माइंड नहीं लगाना होता, सिर्फ और सिर्फ या तो डी मॉर्गन्स थ्योरम का फॉर्मूले का यूज़ करना है आपको सिर्फ आर्ग्यूमेंट का यूज़ करना है, आर निकालना है और वैल्यू निकल जाती है हमारे पास, ठीक है ना। सो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर कुछ नया कंसेप्ट लेके आता हूँ मैं आपके पास। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।